for 10k and 5ks. Congratulations for everyone. Hello, my name's Jason. I live in West Bridgford and I've just done the Roots 5k run. Hi, I'm Palm. I've taken part in the Roots 5k run. Hello everyone, I'm Ashish. Hi, my name is Han. Hello, my name's Jojo. Hi, I'm Prasida. Hi, I'm Sam. And I'm Nat. Hi everybody, my name is Carl. My name is Swan. Hi, my name's Sarah. Hello everyone, I'm Smita Bhatt and I'm here to raise funds and support Root Foundation. Hello everyone, I'm Shapnam Singh from the 1973 batch in Cameron Hall. I'm doing a bike and walk challenge for the month of July for the Roots Foundation. Hi, I'm Ninu. Hello, I'm Soumya. Hello, I'm Siddhan Bora. Hi, I'm Prashant. Hi, this is Andy Bhatt. Hi, my name is Ruchika. I'm Upasna. I did my first competitive run. Hi, my name is Tanya. Hi, I'm Ruchika. I'm Vedika. And my name is Ranveer. Hello, I'm Ritika. Hello, I'm Monica. And I'm Tanisha. My name is Swapnil. My name is Kamna. My name is Anishka. And my name's Akshata. My name is Vivesh. My name is Devesh. Hi everyone, I hope you're well wherever you are. This is Rohit. Hi everyone, this is Gaurav Bhardwaj from Singapore. Hello everyone, this is Pratham. And this is Pratik. So this is the 6th year of Roots Foundation, and this year is special because our the champs, as we call them, who've joined the challenge have increased in manifold. This year we just had 8 days of registration for people to register for the challenge, and I'm so very happy that we managed to cross the magical figure of 100. Yes, we have champs from 7 countries, 27 locations, cities as you can call it, and 111 of us. Yes, 111 of the champs have taken up a challenge in the Roots Foundation, and either they are doing swim, they are doing bike, or a combination of them. Very happy, thankful to all of them, and a big shout out to each one of them. We have a wide range of age group as well in the champs who joined us, from someone who is, I think the youngest is, if I'm not wrong, 6 or 7 years, and someone who is the senior most is around 68, 69, right? So that's phenomenal. And I just love all the energy amongst the community members. Also, especially a big shout out to the people who have debuted this year. So thank you very much and keep the Josh on. Hi, I'm Roots Foundation champ. Hi, I'm a Root Foundation champ. Hi everybody, my name is Mehan Khare and I am a Root Foundation champ doing 50k this year. Hi everybody, my name is Ahana Curry and I am a Roots Foundation champ. This year I'm doing 50 km run. Hi, I'm a Roots Foundation champ. I am a Roots Foundation champ. सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत बुटोला और मैं यहाँ पे चौखंबा जूनियर हाई स्कूल मंसूना में प्रधानाध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। चौखंबा जूनियर हाई स्कूल मंसूना हिमालय के बहुत अंतिम छोरों पे स्थित गांव में स्थित एक विद्यालय है, जहाँ पर काफ़ी विषम परिस्थितियाँ हैं। आप जानते होंगे कि उत्तराखंड जो है सिस्मिक जोन 4 और जोन 5 में आता है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव है।
तो यहाँ पे जो आपदाएं हैं, जो विषम परिस्थितियां हैं, वो हर साल और साल में हर महीने बनी हुई रहती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर जो हमारा विद्यालय है वो भी इन परिस्थितियों को झेल रहा है। और यहाँ पर विद्यालय की जो परिस्थितियाँ थी, पहले से ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था, ये काफ़ी अच्छा नहीं था। तो इसके लिए पिछले साल जब बरसात का मौसम था, उस टाइम पर चंपावत में एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर एक छत गिरने से किसी बालिका की मौत हो गई थी। उसी चीज़ को हमने भी अपने स्तर से अपने विद्यालय पर लागू किया कि हमारे विद्यालय में कुछ इस प्रकार की घटना न हो और हम अपने विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ बनाएं, ताकि भविष्य को अच्छे तरीके से बचाया जा सके। भविष्य में मतलब कोई मिस हैपनिंग ना हो, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो इसके लिए हमने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किए। हमने काफ़ी संस्थाओं से, सरकार से गुजारिश की कि हमारे विद्यालय के लिए कुछ कार्य किया जाए इस स्तर पे। तो जब हमें कहीं से जब हम प्रयास कर रहे थे, तो इसी दौरान हमको रूट्स फाउंडेशन से हमारा संपर्क बना। रूट्स फाउंडेशन में विशेष तौर पे सचिन वाजपेयी जी के द्वारा एक जो हमें सपोर्ट दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विद्यालय की स्थिति थी, पहले बहुत कुछ खास नहीं थी, लेकिन रूट्स फाउंडेशन के बाद उन्होंने अपने स्तर से विद्यालय को संभालने के लिए, मतलब विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके क्लासरूम्स को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ मदद की। तो मैं थोड़ा आपको क्लासरूम्स दिखाना चाहूँगा। एक कक्षा जो रूट्स फाउंडेशन के द्वारा काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया गया है, लेकिन मैं अभी भी विद्यालय की कुछ और झलकियां आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय पहले किस तरीके से था। वो जो कक्षा जो बनाया गया वो पहले किस तरीके से था, उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी। आप नीचे फर्श देख सकते हैं, यहाँ पे फर्श की स्थिति बिल्कुल खराब है, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। साथ ही साथ आप दीवार देखिए, यहाँ पे जो दीवारों की कंडीशन है, अभी इस पे प्लास्टर भी नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो बोर्ड है वो बिल्कुल खराब कंडीशन में है। सामने जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों की स्थिति भी काफी खराब है। यहाँ पे फैन वगैरह की व्यवस्था नहीं है, और फैन वगैरह की व्यवस्था न होने के कारण जो सर्दियों का मौसम होता है वो हमारे लिए बहुत विषम होता है। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई जो है वो लगातार व्यवधानित होती जाती है। इस कठोर ठंड में बच्चे यहाँ पे किस तरीके से पढ़ते हैं, इसको हमने पिछले साल देखा, क्योंकि हमें अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर। तो हमें बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो इसमें रूट्स फाउंडेशन ने हमें मदद की है। तो ये वो कक्षा है जिसे रूट्स फाउंडेशन के द्वारा रिनोवेट करवाया गया। आप इसकी स्थिति देख सकते हैं, इसकी दीवारें देख सकते हैं, इसका फ्लोर देख सकते हैं। ये किस तरीके से अन्य कमरों से भिन्न है और किस तरीके से इस कमरे को हमने सुधारा है। तो इसमें सारी व्यवस्थाएं रूट्स फाउंडेशन के द्वारा करवाई गई। इसकी फ्लोरिंग हो गया, इसमें बिजली की जो व्यवस्था है, बोर्डिंग की जो व्यवस्था है, बैठने की जो व्यवस्था है, पोडियम वगैरह की जो व्यवस्था है, वो सारी की सारी रूट्स फाउंडेशन की मदद से यहाँ पे अरेंज हो पाया है। मैं रूट्स फाउंडेशन और स्पेशली सचिन वाजपेयी जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी भावनाओं को समझा, हमारे बच्चों की भावनाओं को समझा, और उन्होंने विद्यालय को एक अपना परिवार समझ करके, क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और अपना परिवार समझ करके उन्होंने हमें जो सपोर्ट दिया है, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। पूरा विद्यालय परिवार, सभी बच्चों की तरफ से, पूरे विद्यालय स्टाफ की तरफ से और पूरे क्षेत्र की तरफ से मैं उनको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने हमको इस तरीके से सहयोग प्रदान किया। इसी के साथ रूट्स फाउंडेशन को पुनः एक नई उन्नति की ओर बढ़ने के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तो निरंतर बढ़े और इसी तरीके से लोक कल्याण के कार्य करता रहे। धन्यवाद। The project that's going on right now by Roots Foundation. So last year, my childhood friends, Colonel Kunal and Vishal Pradhan, who have been active part of Roots Foundation from their inception days, did an audit in the villages of Pauri. So we shortlisted a school in Parsundakar. It's called Janta Inter College. It is still class 12. And I think the unique part about this school is that it's students from roughly 7-8 villages come in that school and study. The phase 1 has been completed. The phase 1 was the restoration of the administrative block. So during the monsoon season, the school had to shut down because of the monsoon. So in phase 1, we've managed to secure the roof ceiling for the administrative block and the senior block. So that's now completed, and phase 2 and phase 3 will happen as we speak, I think in the days to come. So it looks very... बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल
चल पड़ी अपनी ये नाव है। Okay, so in terms of the activity that we are doing in the year 2026, and you know the activity is only restricted to 1st of July to 31st of July. That's the only time that we try and talk and do bits about Root Foundation. So the first bit is the challenge that we have 111 champs who are doing the fitness challenge, swim, run, bike, single one of them or a combination of them. Secondly, we are of course on the back of it raising funds. This year the target is to raise 4 lakh Indian rupees by the end of July. And third, last year we started this and I think we continue to do this. We are going to have inter-school and school painting competition for kids from various range. And I'm very happy some of the community members, their own school have volunteered to organize them. So we plan to do them one in Okimat, second in Parsundakal, and 2-3 schools in Dehradun, which is really exciting. Thank you. सचिन वाजपेयी जी रुद्रप्रयाग से। ये इंग्लैंड में रहते हुए भी उत्तराखंड के गांवों के स्कूलों और बालिका शिक्षा के लिए अपनी संस्था रूट फाउंडेशन के माध्यम से काम कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सचिन वाजपेयी जी के लिए। आसमां का स्वाद है, मुद्दतों के बाद है, सहमा दिल तक तक करे दिन है या ये रात है। हाय तू मेहरबान क्यों हो गया बा खुदा क्या बात है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा